हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे गेट स्टार्ट विद टेल एंड ट्रेलब्लेजर कम्युनिटी। इसमें एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन व्हाट इज टेलर इज और हु इट्स फॉर, एक्सप्लेन व्हाट इज द ट्रेलब्लेजर कम्युनिटी इज और हु इट्स फॉर, create your own trailer identity. So to learn anything, you have to take up the first step. So you have to already taken the first step of your trailblazer journey by joining us the trailhead. So what is trailhead is a person who is among the first to explore or settle a new area, or who introduce new method, ideas, life by learner who loves a path for others, and most important, who builds a better world for others. As we told already, Tailhead and Trailblazer community are one step to shop, to learn and connect from anywhere. Tailhead is for everyone, anyone who loves to learn, either he or she is graduate, fresher or sales for employee. तो टेलहेड किसके लिए? किसी के लिए भी है, जो भी है, चाहे वो कोई भी फील्ड से हो, डजेंट मैटर वो क्या कोर्स क्या कुछ भी नहीं। जैसे अपन ने पिछले पिछले क्लास में ही बताया था कि बीए बीएससी बीआईटी मतलब नहीं रखता है, जस्ट जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। तो हाउ डज इट वर्क? इट ब्लॉक्स इनटू मॉड्यूल्स व्हिच आर ब्रोकन इनटू यूनिट्स, to finish a unit. You earn points by completing a quiz or a challenge. These are multiple choice questions. There are multiple choice questions for check your knowledge. Once you finish all of the units in a model, you get a new badges for your profile. Group of units. अब modules क्या होता है? Group of units called modules and group of modules called trials. So you can choose your own modules as per interest. इसमें हम लोग जैसे भी देख रहे हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं कि एक कंप्लीट करें, एक कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। आपको कहीं जहाँ जो इंटरेस्ट रखता है उसमें आप क्लिक करके उसको आप बढ़ सकते हैं आगे। जहाँ पर बहुत सारे बैच है, आपको चैलेंज मिलेगा, मल्टीपल क्वेश्चन मिलेगा, वो सब कैंसर देना दे के आप आगे बढ़ सकते हैं आगे। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? नो सर। सपन? हेलो सपन? हाँ, You can continue next paragraph. Who are trailer and trailer with community for? so as Rajesh was explaining that as in when you move on and you create your profile in a Trailhead, we will start with learning what Trailhead is and what Trailblazer are, what Trailblazer community means, as well as how the courses are defined and what are those termed in Trailhead. As Rajesh was explaining that in Trailhead, when you start to learn, every courses which are defined, those are called as module. Okay, if you go in to Trailhead, there will be many modules you will see, and each module is related to each functionality, each topic which you will learn and which you will start to use in your day-to-day life when you will become a developer in Salesforce. So there are many modules, and each module consists of units. Like in a book, we have a book, and then the book will consist of chapters. Similarly, you will have modules, and then inside the modules, you will have units categorized into that modules. So let's proceed. As we have already learned what Trailhead is and what it is, who it is for, and also we learned what Trailblazer community is and who it is for. And now we will be also learning in here how you create your Trailblazer identity. Okay, so I'll not go into detail about what Trailhead is and who it is for, because we have already discussed that, because Trailhead is a platform which lets you learn Salesforce, and it is a fun way of learning.
it provides you various ways, and the topics are very small topics are given, so that you don't get bored with every topic. When you start to learn, the topics will be like 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. So it doesn't let you get bored with the topics and with the theory. So every unit which you start to learn, there will be practicals also, hands-on. So that we will see when we start to use it. Similarly, Trailblazer community, you can think of a Facebook group or a WhatsApp group where we create groups to communicate, between each other. When we have problems or when we have something to share, we share those with in the groups. Similarly, the Trailblazer community is basically a group of trailblazers, where anything which you are learning and which you are facing problem during your module or units, you can ask questions and you can discuss those things. And also you will find people uh, who have completed so many modules, and they have much more experience, and so you can follow them also and ask questions to them as well. Details you can just read down later when you have time, and then you can ask questions if you have missed anything which you have not explained and you are reading and you are not getting those things while you are reading. So you can ask those things when you have time. Now, okay, this we have already explained that these are modules are broken into units. So as we were also explaining that every unit because there are multiple modules and each modules will have different units, how the point system works. The point system works in such a way that every time you finish a unit, either there will be multiple choices question or there will be hands-on challenges. So once you finish those multiple choice questions or you finish the hands-on challenges by doing practical, you get points after finishing those. Okay, so once you finish and once you submit those hands-on challenges and the questions, you will get points according to that unit. So the points will depend on what unit you are covering. The points will not be same for each unit or the modules. There will be different units with different points, and there will be the questions, multiple choice questions, as well as the challenges will be related to that unit. भैया ये जो मॉड्यूल्स है और यूनिट्स, हम्म। इसका सारा टॉपिक हमको पढ़ना कहाँ से है? हम लोग बताएंगे कैसे पढ़ना है, हाउ यू वांट टू गो थ्रू। जब अब जैसे अभी हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए तो पहले से आपको भेज दिए कि कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, ठीक है। तो स्लोली जब 1 महीना 2 महीना ऐसा हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, कौन सा यूनिट पढ़ना है। लेकिन फॉर दिस होल 6 months वी विल बी टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू फॉलो एंड व्हाट यू नीड टू लर्न। एंड हम लोग ही सारा मॉड्यूल पिक करेंगे और सारा मॉड्यूल्स हम लोग वहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग जब अपना प्रोफाइल बना लेंगे तो वो सारा मॉड्यूल्स को आप लोग फॉलो करके रखेंगे, कंप्लीट करेंगे। So there is one more thing which you can see here, that every module will have favorites option. You can add to the list और यहाँ पे टैग भी कर सकते हैं। तो ये सारे बटन्स के थ्रू आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल के अंदर रख सकते हैं। तो जब आप ट्रेल हेड में यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जब आप होम पेज पे होंगे इसके, तो होम पेज में आप वो सारा चीज़ जो आपने रखा हुआ है वो यहाँ रिकमेंडेशन भी होगा आपके प्रोग्रेस के हिसाब से और आपका प्रोफाइल के हिसाब से। इफ़ यू आर अ बिगिनर, यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन होगा, all the modules will be related to you because you are a beginner। ठीक है, मैंने चूंकि कुछ कर रखा है तो यहाँ पे मुझे मेरे से रिलेटेड दिखा रहा है। जो इन प्रोग्रेस होंगे, जो मॉड्यूल्स में, जैसे कि एक मॉड्यूल में 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, आपने सिर्फ 2-3 यूनिट ही खत्म कर रखा है और रिमेनिंग यूनिट बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इन प्रोग्रेस मॉड्यूल्स अब दिखेगा कि जो आपने स्टार्ट किया था अब कंप्लीट नहीं किया है। ट्रेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रेल्स क्या होता है, ट्रेल मिक्स क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो फेवरेट्स बना के रखे वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये जितने भी फेवरेट्स बना के रखे हैं। इस तरह से आपका वो सारा जो भी मॉड्यूल्स है यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं अपना होम पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? हेलो सर। ओके भैया। हाँ, सर ये
हम प्रोफाइल बना रहे सर ट्रेल हेड में, सर वो हो नहीं रहा, बन नहीं रहा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक। और सर नहीं, आइदर भैया या फिर सपन बोल के बुला सकते हो। ओके। ओके सर, ओके भैया। हाँ, वो प्रोफाइल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर हम लोग कम्युनिटी पढ़ लिए हम लोग। देन ओके, ट्रेल हो गया, वो ट्रेल हेड एंड द प्ले। ओके, सो ये भी जैसा कि बताएं कि हु आर ट्रेल हेड एंड द ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी को, ये भी जैसे कि आई जस्ट एक्सप्लेन, we just explained that any member who joins the trailhead, they become trailblazer. And when you create a group or when you join a group, all these trailblazers, that will be a community. ठीक है, that will, तो वही community होता है जिसमें depending on the groups you are joining, so there can be various groups depending on the reason, depending on maybe some particular solution, depending on some particular area, बिकॉज सेल्सफोर्स इज सो बिग, इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फंक्शनलिटीज हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि B2C B2B के बारे में कि कैसे कस्टमर्स जो B2C में होता है वो जो फ्रंट एंड होता है वो क्या सेल्सफोर्स का होता है, B2B में जो फ्रंट एंड होता है वो क्या होता है। तो चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, सो एक ही आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता है ना। तो जो भी एरिया जिसका होता है वो उस एरिया का एक ग्रुप बना कर रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई B2C का मॉड्यूल रखा है, कोई कॉमर्स क्लाउड का मॉड्यूल रखा है, कोई सर्विसेज का मॉड्यूल रखा है, कोई रीजन वाइज रखा है, मे बी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और साउथ, वॉट एवर। सो व्हेन you can basically create related to what you are learning, so there is no boundation for it. Okay, you can join groups, you can participate, you can have group discussions. ओके, जो यहाँ पे अभी टर्म्स देख रहे हैं ना कि यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन और स्टार्ट अ डिस्कशन अराउंड टॉपिक्स इन द ट्रेलब्लेजर कम्युनिटी. A topic allows any trailblazer to discuss or ask about a specific Salesforce subject like sales, service cloud, mobile development, my trailblazer story. So जितने भी हैशटैग हैं, हर एक चीज हम लोग स्लोली लर्न करेंगे सेल्सफोर्स में। ये हर एक टर्म जो है एक फंक्शनलिटी है, एक फीचर है सेल्सफोर्स में जिसको कि डिफाइन किया हुआ है। सर्विस क्लाउड एक वन ऑफ द कैपेबिलिटी और फंक्शनलिटी है जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। मोबाइल डेवलपमेंट में भी होता है, सेल्सफोर्स मोबाइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ट्रेल ब्लेजर स्टोरी, आपको अपना कुछ स्टोरी डालना है तो आप, तो ये सारा चीज़ हम लोग स्लोली सीखेंगे। अभी बस इतना जान के रखना है कि whatever you are learning, you can discuss any topic in Salesforce related to Salesforce. ठीक है ना? अच्छा भैया, हम्म ट्रेल ब्लेजर जो बोले वो केवल एक बिगिनर को बोल सकते हैं या फिर जो प्रोफेशनली वर्क कर रहा है उस जगह पे उसको भी बोलेंगे? कोई भी कोई स्टूडेंट, भी हो सकता है। स्टूडेंट में कोई भी, और फर्स्ट जो सेकंड जो थर्ड कर रहा है वो उससे कैटेगराइज नहीं करते। स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, सो ट्रेल ब्लेजर इज ट्रेल ब्लेजर, एक्सपीरियंस डजंट मैटर। आपको अगर आपका जैसे कि ट्रेल ब्लेजर में जैसे जैसे स्टूडेंट्स का होता है ना रैंकिंग मार्किंग, उसी तरह से जब आप एक ट्रेल ब्लेजर बनते हो तो देन आपका जो प्रोफाइल होता है, दैट प्रोफाइल टेल्स यू कि आपका क्या रैंक है, आपने कितने बैजेस कलेक्ट किए हैं, आपका कितना पॉइंट्स है। सो दैट वो जो इन्फॉर्मेशन आता है वो आपके प्रोफाइल में होता है। बट एनीवन हु जॉइंस ट्रेल हेड, दे आर कॉल्ड एज ट्रेल ब्लेजर, एक्सपीरियंस डजंट मैटर। ये बहुत स्लो है आज भी इंटरनेट, ये जब लोड हो जाए वो दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये बता रहा है okay, so because Salesforce is basically spread all over the world, Trailhead और Trailblazer community जो है, these are available in 8 different languages. इंग्लिश में है, जर्मन में है, जापानीज में है, फ्रेंच में है, लैटिन में है, लैटिन अमेरिकन स्पेनिश में है, ब्राज़ीलियन पोर्तुगीज में है, कोरियन में है, सिंप्लीफाइड चाइनीज में है। तो इन सभी लैंग्वेजेस में सेल्सफोर्स आज के डेट में अवेलेबल है। तो ट्रेल हेड एंड ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी जो है वो, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है लैंग्वेज तो उसके लिए स्टेप्स है, आप स्क्रॉल डाउन करके मेन्यू से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। किसी को कुछ क्लियर है सबको यहाँ तक?
कोई क्वेश्चन? इफ नॉट आई प्रोसीड। व्हाट मेक्स ट्रेलहेड स्पेशल? ठीक है, ट्रेलहेड को क्या स्पेशल बनाता है? ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि लर्निंग तो ऑनलाइन लर्निंग तो हम लोग बहुत सारा देखें, यूट्यूब में भी ऑनलाइन लर्निंग होता है, आज हमारे क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं। उसी तरह से ट्रेलहेड का जो लर्निंग है ये भी ऑनलाइन है। सो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल, कि ट्रेलहेड क्यों इतना स्पेशल है, उसके लिए यहाँ पे ये बता रहा है कि Trailhead contents blends a variety of content types and approaches to cater to all types of learning, including videos, code samples, walkthroughs, screenshots, images, tables and charts, step-by-step instruction. When we create content, we use a set of guiding principles that include practical examples and scenarios, storytelling, authenticity, casual voice and tone, positivity, fun, and fun. तो ट्रेलहेड क्या है कि बेसिकली ट्रेलहेड के जितने भी मॉड्यूल्स और जितने भी यूनिट्स बने हुए हैं, ऑल कंसिस्ट ऑफ वीडियोस, कोड सैंपल्स मिलेंगे आपको। तो कोड सैंपल्स विल बी कि अगर आप इफ़ यू आर अ बिगिनर, ठीक, क्योंकि सेल्सफोर्स का भी अपना एक लैंग्वेज है, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस होता है, उसी तरह से सेल्सफोर्स का लैंग्वेज है एपेक्स प्रोग्रामिंग। So it provides you with samples so that you can slowly learn those, as well as it basically explains you, providing walkthroughs. It provides screenshots, images, tables and charts, and there will be step-by-step instruction, clear step-by-step instruction. If you follow the steps carefully and clearly, you will never find any issues, and the learning will be very very easy. Okay? And the best part in learning Salesforce and Trailhead is there are practical exams and scenarios. Every time you finish a module, there will be multiple choice questions or there will be hands-on exams, challenges. So that makes it interesting, and it makes it basically fun way of learning. So जो modules होते हैं, there will be storytelling also. Like I used to take, whenever I take trainings with other people, I always take live examples, whatever we are doing, and we know. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कभी लास्ट 2 क्लासेस में मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लिया, अमेजोन का एग्जाम्पल लिया, आज फेसबुक का एग्जाम्पल लिया। तो ऐसे चीज़ों का एग्जाम्पल लेना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग समझ सकते हैं, जिससे हम लोग को रिलेट कर पाए। तो उसी तरह से जब सेल्सफोर्स, व्हेन यू लर्न सेल्सफोर्स इन यूजिंग ट्रेलहेड, देयर विल बी सिमिलर एग्जाम्पल्स, रियल टाइम एग्जाम्पल्स, स्टोरी टेलिंग होगा, जिसमें कि आप समझ सकते हैं क्लियरली कि क्यों कर रहे हैं और उसको कैसे हम लोग फ्यूचर में उसको यूज करेंगे। ठीक है, देन यू हैव जस्ट मोमेंट। ओके, सो एज वी सी, ऑथेंटिसिटी, कैजुअल वॉइस एंड टोन, पॉजिटिविटी, सो ये सब आप फील करेंगे व्हेन यू स्टार्ट टू लर्न द मॉड्यूल्स। ओके, did we mention fun? We want you and everyone who uses Trailhead and Trailblazer community to have fun together. We gamify our content. Okay, so यहाँ पे वही बताना चाह रहा है ओवरऑल कि चूंकि Trailhead is mentioning about fun, having fun when learning, that means कि जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट इस टाइप से डिजाइन किया हुआ है Trailhead का कि ये आप लर्न करने के टाइम में आप पॉइंट्स अर्न करेंगे, आप बैजेस अर्न करेंगे, like I was showing you before, right? Every time you finish a module and every time you finish a unit, you get points, and after finishing certain modules, you will get badges. ठीक है, and और जैसे कि सेम चीज अगेन रिपीट किया है यहाँ पे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं लोकल ट्रेल ब्लेजर्स के साथ भी to learn together. So when you start to learn in Trailhead and you become a trailblazer, आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे ट्रेल ब्लेजर के साथ में, ताकि आप साथ में लर्न कर पाए। वेयर डू आई स्टार्ट? सो हाउ डू यू स्टार्ट? तो ट्रेलहेड का लिंक आप लोगों सबको पता चली गया। आप trailhead.salesforce.com इसमें जाना है, उसके बाद आपको साइन अप में क्लिक करना है। ठीक है, then all these options are basically telling you about how you can create your profile, so you can directly using Salesforce. This I'll tell you later.
Then you can use Google, you can use LinkedIn, you can use your personal email address also for signing up. Signing up is similar to what you do for Facebook or Google or any other platform which has login credential and sign up. It's going to be a similar sign up for Trailhead as well. There'll be a set of fields which you will need to fill according to your information what you're filling in. We'll discuss about those information. Okay. Okay. So basically, what it's trying to tell you that if you, when you are trying to sign up, you can choose the easiest way, which you find is easier to log in by providing email address or through the social networking sites like Google, LinkedIn. ठीक है ना? What it's saying is if you choose the social identity, you can keep your Trailblazer profile no matter where your career takes you. ठीक है? For example, अगर आपने अपने this example is for the persons who are working in a company और वो मान लिया अपना company email address से register कर रहे हैं, तो वही बता रहा है कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से या फिर अपना जो भी सोशल आइडेंटिटी से लॉगिन करते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि वेयर योर करियर इज टेकिंग यू, आप कोई भी कंपनी स्विच करेंगे चूंकि आप अपने सोशल आइडेंटिटी से लॉगिन किए हैं, यू विल बी एबल टू एक्सेस द ट्रेल हेड एनीवेयर यू गो इन योर करियर. ठीक है. और इफ यू आर यूजिंग योर कंपनी सेल्सफोर्स लॉगिन, देन योर कंपनी कैन यूज द ट्रेल tracker app to see all the awesome learning you are doing. उसी तरह से for example, if you are working for a company, for example Bina IT Solutions, if you are working for Bina IT Solutions and Bina IT Solutions have Salesforce, then what, and you're using Bina IT Solutions email address for signing up in Trailhead, um, Bina IT Solution as a company can track your record, track your profile and progress using the Trail Tracker app. So there is a Trail Tracker app there. When a company logs in, they will be able to see all their employees' profile if they would have used the company's email address. ठीक है ना ये? So basically this is for a company. तो ओवरऑल यहाँ पे ये है कि आप ट्रेल हेड जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं विद सोशल नेटवर्किंग साइट्स और विथ योर पर्सनल ईमेल एड्रेस, विथ योर कंपनी ईमेल एड्रेस और विथ Salesforce login if you are already having a Salesforce login. ठीक है. And later also if you want to connect your social accounts, you can do that by clicking on the settings and then clicking on when you click on the settings, you need to scroll down, click on the connect button, and then you can connect your Salesforce email or social account respectively. ठीक है. So again, what it is trying to say is that if you are trying to if the login identity you are trying to link already has Trailhead or Trailblazer community data such as badges, points, groups, connection or favorite associated with it, you can merge it with your other account. So basically if you have, for example, if you have today a Trailhead account with a Gmail account and later on you had created a profile also with your company's profile, and when you try to link your current Gmail account with the company's profile and it tells you that there is already an account associated to it, Trailhead and Salesforce provide you an option to merge both the accounts. So when you merge any account, one or more than one account, when you're merging it, all the points, all the badges and everything what you have in your both the accounts will be merged, and whatever the primary account you are going to select, that primary account is going to have everything after merging. So again, next what it is saying, who me. So when you create a Trailblazer profile, it is your digital Salesforce resume. Like if I go to my account, here is that trailblazer.me. So trailblazer.me, this is my personal Salesforce, my personal Trailhead profile. If I share this with anyone, they can
view my profile and they can see what badges, how many badges I have earned, and how many points I have earned, how many trails I have completed. All these informations will be visible to any Trailblazer who is going to access my Trailblazer ID. Okay. What's hands-on challenge anyway? So I'll not read each line here. I'll just explain you what hands-on challenge is. For example, if I take an example of Java, when you are learning Java, every time maybe when you're finishing a chapter, there will be some examples which you are going to perform practical. When you are performing a practical, you write a set of statements and you finish those, and then you execute those to get the output. Similarly, when you are finishing any module or a unit related to that unit, there will be practical exam, you can say. So the Trailhead provides you a platform to test those units. And when you create that platform is called Trailhead Playground. In that platform, you can basically perform all the practicals. You can start using it, and when you perform that practical activity following the unit, that activity is called hands-on challenge. ठीक है, उसमें like yeah, so basically that is it. So आप लोग अब next step पढ़ेंगे तो then you will create a Trailhead playground. So that is what it is explaining here. What's a Trailhead playground is, as I mentioned, a Trailhead playground is a platform given by Trailhead. You will need to create it. After you create, you can perform all the hands-on challenges. So यहाँ पे sample में आप देखिएगा hands-on challenge लिखा हुआ है. It provides details of what you are going to do. So once you create a Trailhead playground, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे launch click करेंगे. Once you click launch, it will take you to a separate tab of the browser. आपको शायद हम कल दिखा रहे थे ना कि आप उस पर फिर लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड देन यू नीड टू जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच इज रिटन हियर. ठीक है, ये स्टेप्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि दिस इज नॉट रिलेटेड टू इट. और ये काइंड ऑफ समझिए आफ्टर अ मंथ दिस थिंग विल कम. सो अभी इस स्टेप्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आपका जो स्टेप्स होगा स्टार्टिंग का, दोज स्टेप्स विल बी वेरी वेरी सिंपल एंड वी विल बी देयर टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फॉलो दोज स्टेप्स. So basically, Trailhead Playground is a platform provided by Trailhead that lets you test your learning, that lets you test all the features which you have learned in that unit, and test any customizations. Customization, I'll explain you later what customization mean. अभी simply ये जान के रखना है कि आप इस Trailhead Playground में कोई भी नया learning, कोई भी feature और कोई भी customization कर सकते हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली भैया ये प्रैक्टिस के लिए है. प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्टली. और भैया ये सारे जो आप इन्फॉर्मेशन बताएं ये सारा उस लिंक में दिया हुआ है. हाँ, जब लिंक खोलेंगे ना तो लिंक में आपका ये खुलेगा. पहला लिंक जो खोलेंगे, पहला लिंक में जो अभी राजेश बताएं वो खुलेगा. सेकंड लिंक जो दिए हैं, सेकंड लिंक में ये खुलेगा. और उस सेकंड लिंक में अभी हम जो बता रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट है, ये वाला गेट स्टार्टेड विद ट्रेलहेड एंड ट्रेलब्लेजर कम्युनिटी. आज हम लोग बस ये पढ़ने वाले हैं. कल हम लोग ये तीनों ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी हम लोग आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. तो 5 मिनट्स लिखा हुआ है, तो 5 मिनट्स एक्चुअली नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में हो सकता है 5 मिनट लिखा हो, लेकिन वो 5 मिनट से ज़्यादा भी लग जाए. तो यस, बेसिकली अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जिसका पहला यूनिट खत्म कर रहे हैं अभी. ठीक है, सो व्हाट्स नेक्स्ट. या कुछ बोल रहे थे. और भैया अगर और भी इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में यूट्यूब में भी एक्सप्लेन है क्या? हाँ, यूट्यूब में भी है. मैंने अपना एक चैनल भी बना कर रखा है बिना IT सॉल्यूशंस का. वो लिंक हम भेज देंगे ग्रुप में. उसमें डे 1 से अभी तक बहुत सारा वीडियोस डाले हुए हैं. वो सारा वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं. उसमें भी आप लोगों को, उसमें हम हिंदी में भी बताए हैं. वो सारे क्लासेस लोग यहाँ पे. व्हाट्स नेक्स्ट, यू हैव साइंड अप फॉर ट्रेलर एंड यू आर रेडी टू लर्न. ओके, सो व्हाट इट्स टेलिंग इज कि अब आप लोगों को साइन अप करना है. साइन अप में, अच्छा कोई अभी क्वेश्चन पूछ रहा था ना, साइन अप नहीं कर पा रहे हैं, कौन था वो? साइन अप में किसको प्रॉब्लम हो रहा है? हो गया सर. हो गया, गुड. तो एक हम बस सैंपल दिखा देते हैं सभी कोई को साइन अप क्या करना है. वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट. साइन अप में क्लिक करना है यहाँ पे.
और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शंस दिया हुआ है, आइदर यू कैन कनेक्ट विथ योर पर्सनल ईमेल एड्रेस और योर गूगल और लिंक्डइन, एप्पल आईडी, फेसबुक, ये किसी भी चीज़ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सेल्सफोर्स का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो भी लोग ट्रेल हेड स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करने के लिए, अगर वो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में सेल्सफोर्स यूज होता है, तो मेरे पास सेल्सफोर्स का लॉगिन ऑलरेडी है। तो मेरे लिए क्या है कि हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो वो सेल्सफोर्स का लॉगिन मुझसे मांगेगा, तो मैं उससे लॉगिन कर लूंगा। अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, आइदर ईमेल यूज करेंगे या जीमेल यूज करेंगे या लिंक्डइन या एप्पल या फेसबुक, क्योंकि मेरे पास सेल्सफोर्स नहीं है। तो आप लोग जो है, आप लोगों के पास इन सभी में से कोई भी ऑप्शन हो जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जो आप लोग जिसे यूज करना चाहते हैं, वो यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ओके भैया, भैया इसमें ऐसा भी आईडी बनाया जा सकता है क्या कि किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय है तो सारे एम्प्लॉय एक ही आईडी को एक्सेस करें? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? भैया एक कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉयज है और हम्म। सारे एम्प्लॉय एक ही आईडी को एक्सेस करें, कुछ ऐसा वर्क करे कि जो 100 एम्प्लॉय मिल के एक साथ कर सके? ये प्लेटफॉर्म के बारे में बात करो या फिर ये ट्रेलहेड लॉगिन का बात करो? ये लॉगिन का बात करें भैया कि सारे एक ही लॉगिन में, तो मतलब एक ही आईडी पे लॉगिन। हाँ, लॉगिन कर सकते हैं लेकिन वो बेनिफिट नहीं करेगा ना। ये लॉगिन तो वही है कि हम आज फेसबुक में एक लॉगिन बनाए और हम अपने सारे दोस्त को शेयर कर दिए यूजर आईडी पासवर्ड। सेम नहीं कॉन्सेप्ट। भैया, उसमें अगर कुछ काम करना चाहे सब मिल के तो टीम वर्क। टीम वर्क के लिए हम बताएंगे क्या करना है। वो टीम, यहाँ दो चीज है, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एक ट्रेल हेड है, ठीक है, और एक ट्रेल हेड प्लेग्राउंड है, और आगे चल के जो हम लोग सीखने वाले हैं वो डेवलपर एडिशन होता है। ठीक है। ट्रेलहेड का लॉगिन शेयर करने से कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ट्रेलहेड क्या है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, और सबका अपना प्रोफाइल होगा जिसमें सबको अपना पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, सबको अपना बैजेस कलेक्ट करेंगे। इससे अपना पर्सनल प्रोग्रेस ग्रोथ पता चलेगा। जो जो तुम बोल रहे हो उसका क्या होगा कि तुम चाह रहे हो कि सब मिल के कुछ एक बनाए। तो बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया, मतलब हम कुछ डेवलप करके कोई ऐप बनाए है ना। ऐप बनाने के लिए वो ऑर्ग जो होगा, वो जो प्लेटफॉर्म होगा, आगे चल के हम बताएंगे, उसको ऑर्ग बोलते हैं सेल्सफोर्स के टर्म में। तो वो ऑर्ग आप बना सकते हैं, उसमें मल्टीपल यूजर्स, जितना भी लाइसेंस, वो टोटली लाइसेंस बेस्ड होता है, तो वो जितना भी लाइसेंस, वो लाइसेंस के ऊपर है। तो अभी जो फ्री का जो होता है, हम लोग को जो ट्रेलहेड प्लेग्राउंड दे रहा है, वो ट्रेलहेड प्लेग्राउंड जो है फ्री का होता है। तो उस फ्री वाले में आई थिंक 2 यूजर्स अलाउड हैं। तो 2 यूजर्स के साथ हम लोग टीम वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि सेल्सफोर्स का जो लॉगिन आईडी होता है ना, सेम एज फेसबुक, आप यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो वो आप 100, 1000 कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एक्चुअली टीम वर्क करना होगा तो आगे चल के हम बताएंगे कैसे उसको हम लोग विथ टीम वर्क कुछ डेवलप करना है, वो भी हम देंगे आगे। जब हम लोग 1-2 महीना कर लेंगे तो टीम वर्क के साथ आप कैसे कुछ बिल्ड करेंगे कोई ऐप, वो हम लोग करेंगे, जिसमें कि सबको लॉगिन मिलेगा, सबको वो बिल्ड करेगा। ठीक है। मतलब ये टोटली सीखने के लिए है केवल, अभी मतलब इस पे वर्क करना नहीं है? अभी नहीं, वर्क कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सीखने के लिए बना हुआ है, इसमें आप उतना ठीक है। हेवी वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसमें उतना स्पेस नहीं होगा। लेकिन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हर चीज पैसे के लिए होता है ना। अब सेल्सफोर्स यहाँ पे लर्निंग के लिए अच्छा। दिया है, तो अगर लर्निंग के लिए अगर वो फुल ऑन लाइसेंस और फुल ऑन एक्सेस देने लगे तो सबको इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको इस टाइप से डिजाइन किया हुआ है सीखने के टर्म में, कि ये हर चीज को लिमिटेड दिया हुआ है। यूजर्स लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है। आई थिंक ट्रेलहेड में 5 MB ही स्पेस होता है। दैट मीन्स कि आप ऐप तो कुछ भी बना लेंगे, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए 5 MB इज नॉट एनफ। तो जब आप टेस्ट करने जाओगे, जब आप बहुत सारा डेटा बनाओगे, तो वो 5 MB तुरंत एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, सीखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो फ्री का जो और दिया हुआ है प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं ट्रेलहेड प्लेग्राउंड, उसमें मैक्सिमम 2 यूजर ही बना सकते हैं। लेकिन वो 2 यूजर्स जो बनाएंगे उसको आप कितने भी लोग के साथ शेयर करके काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो जो अभी पूछ रहे हो ना, जो टीम वर्क, वो हम लोग करेंगे जब हम लोग एटलीस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे ना। उसके बाद हम लोग ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम बताएंगे कैसे उसको हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। तो सबको डिवाइड हो जाएगा काम, कोई यूआई करेगा, कोई बैकएंड करेगा, कोई डिजाइन करेगा। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे उस समय। एक प्रोजेक्ट जब हम लोग एक्चुअली करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, उस समय हम लोग डिवीजन कर लेंगे उस प्रोजेक्ट में किसका क्या काम है। ठीक है। ओके भैया। ओके।
तो अगर सबको क्लियर है तो सबको साइन अप करें। साइन अप करके सबको लॉगिन अपना जीमेल से चाहे जैसे भी आप लोग को लॉगिन करना है वो साइन अप करके रखिए। कल कोशिश कीजिए कि सबको एटलीस्ट रीडिंग करके आए ये तीनों यूनिट, तो ये इजी होगा सबके लिए। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो अगेन जैसा हम बताते हैं सब क्वेश्चंस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसे तो यहाँ क्लास में पूछ ही सकते हैं। अगर भैया मेरा कुछ गलती हो प्लेग्राउंड जाए क्या तो होगा सुधार उसमें? सकते हैं। ओके, वन बाय वन। पहले प्लेग्राउंड लोकेशन। प्लेग्राउंड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेस्ट करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसको। जैसे कि आप जावा का कोड लिखते हैं, एडिटर पे लिखते हैं, उसको रन करते हैं, है ना, तो टेस्ट करते हैं वहाँ पे। उसी तरह से प्लेग्राउंड क्या है, जो भी सेल्सफोर्स में सीख रहे हैं वो सेल्सफोर्स को सीखने के बाद उसको जब एक्चुअली में डेवलप करेंगे आप, तो डेवलप करके जो टेस्ट करेंगे वो प्लेटफॉर्म आपका है वो टेस्ट करने के लिए। तो प्लेग्राउंड वो है, प्लेग्राउंड आपको प्ले करना है वहाँ पे सेल्सफोर्स से रिलेटेड चीज। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था? भैया अगर कुछ भी गलती हो तो वहाँ हम सुधार सकते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल, कुछ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, गलत कुछ भी गलत होगा वो सुधार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम जो भी आप लोग C++ जावा में करते हैं, कैसे करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन एरर्स आता है, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन एरर आता है, तो आप फिक्स करते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सेम चीज़ है, आप जब यहाँ पे भी सेल्सफोर्स में भी कुछ करेंगे तो उसमें भी जब सेल्सफोर्स में प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ भी कंपाइलेशन होगा, वो भी कंपाइल करेंगे, आप एरर फिक्स करेंगे, एग्जीक्यूशन एरर्स भी होगा, फिर एग्जीक्यूशन एरर्स फिक्स करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेल्सफोर्स में तो कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर कोई गलती करेंगे तो उसमें भी एरर आएगा, गलत बना देंगे तो वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो भी हर चीज़ पॉसिबल है।